Sorry, due to some technical error, the lecture got cancelled while we were calculating that 5% reversal. So basically, the crunch of the whole calculation is under Rule 42. There are two type of reversals which are happening. If you can see, there is the first reversal called D1, second reversal is called D2. D1 was a reversal for credit attributable to EXIM supply on a proportionate basis. D2 is a reversal for credit attributable to non-business use. D1 was calculated on the common credit C2 on the proportionate basis, EXIM to total turnover for the respective month, that is calculated on the basis of proportionate turnover for the respective month, while D2 has no proportion, it has a flat 5% of C2, and these two reversals are to be done out of 35,000. So C2 was the common credit available to me, out of which 11,667 I need to reverse due to the proportionate reversal on an EXIM supply, and out of again 35,1750 I need to reverse for D2, that is for non-business use. So these two are reversal, and the net credit available to me out of 35,000, net credit available to me is 21,583. Now if we need to see that what is the net amount of credit which is available to us, because we started our journey with this 1 lakh rupees, out of which we initially reversed this 35,000. So the amount which was credited in our credit ledger was 65,000. But out of this 65,000, 30,000 are belonging to those supply which are exclusively used for taxable purpose, and 35,000 was common credit. So मेरे पास टोटल 65,000 का अमाउंट था जो आईटीसी लेजर के अंदर क्रेडिट हुआ था. तो ये टोटल 65 में से ये दो रिवर्स हुए हैं 11,000 and 1750. तो मेरे पास क्रेडिट कितना बचता है? तो मेरे पास क्रेडिट बचता है एक तो ये T4 वाला 30,000, क्योंकि उस पर कुछ रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट वॉज बीइंग यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल पर्पस. और दूसरा बचता है आउट ऑफ द कॉमन क्रेडिट, ये 30,000 में से कुछ रिवर्स नहीं हुआ, जो रिवर्स हुआ ये 35 में से हुआ. सो 35 में से रिवर्स होकर बचते हैं मेरे पास आई एम सॉरी 35,000 में से बचते हैं मेरे पास 21,583. So the total credit available to me at the end of the respective month would be 51,583 for CGST, same amount for SGST, and 19,867 for IGST. So this is something which again I'll put in a way that this is something which you need to do every month. This is something which you need to do every month. And at the end of the year, one more time you need to do. I'm coming on that now. So in a respective month, if I think I have already discussed it, that in a respective month, if you don't have a turnover, then you can refer to the turnover of the previous period. So where it has been written in a K, I think we did this. Just a second. So C2 and this is common credit. In this proviso. So it's something which we did here. And what further they are saying is कि ये reversal आपको करना है every month. So let's read M. The amount equal to aggregate of D1 and D2 shall be reversed by the registered person in form GSTR 3B. सो हमें पता है 3B हम फाइल करते हैं ऑन अ मंथली बेसिस. तो आप जब 3B फाइल करते हो तब करना है. अगर रह गया है तो देयर इज अ स्पेसिफिक फॉर्म कॉल्ड DRC03, वहां पे भी आप इसका पेमेंट कर सकते हो. सो या तो मंथली 3B में कर दो, अगर रह चुका है 2-3 महीने का और एक साथ में करना है, आप 3B में करना भूल चुके थे रिस्पेक्टिव मंथ का, तो अगर बाद में करना है तो आप कर सकते हो ये DRC03 के अंदर. ठीक है. और जैसे कि मैंने बोला, दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमने क्या किया? हमने ये जो पूरा D1 और D2 का कैलकुलेशन था,
D1 और D2 का कैलकुलेशन था वो हमने किया है ऑन अ मंथली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस पूरे 12 महीने के लिए, अप्रैल से लेके मार्च तक हर एक महीने का इंडिविजुअल टर्नओवर लिया, हर एक महीने का इंडिविजुअल टर्नओवर लिया, वो प्रोपोर्शनेट किया एग्जाम टू टोटल, उसके सामने मल्टीप्लाई की हमने कॉमन क्रेडिट और निकाला कि D1 का अमाउंट कितना आता है। निकाला हमने क्या कि D1 का अमाउंट कितना आता है। ये पूरा कैलकुलेशन हमने D1 और D2 का कैलकुलेशन हमने क्या किया ऑन अ मंथली बेसिस, मंथली प्रोपोर्शनेट टर्नओवर के बेस पे हमने पूरा ये कैलकुलेशन किया। उसके बाद अब ध्यान से सुनना, उसके बाद आपको 12 बार तो ये कर चुके हो, 13 टाइम 13वीं बार एक और बार करना है। वो कब करना है? एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। ये ध्यान से सुना, ये एक्सरसाइज ना भूल सकते हैं बहुत सारे लोग। एट द एंड ऑफ द ईयर एक और बार हमें ये कैलकुलेशन करना है। हमने जो 12 महीनों में रिवर्सल किया D1 और D2 का, ध्यान से सुनना, 12 महीनों में अप्रैल से लेके मार्च तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये सारे महीनों में हमने इंडिविजुअल D1 और D2 का कैलकुलेशन किया, रिवर्सल हर मंथ में किया। उन सब का टोटल कर दो तो आपको साल की अमाउंट मिल जाएगी ना। तो हमें पता चल जाएगा कि पूरे साल में ये टोटल D1 D2 का हमने रिवर्सल कितना किया है पूरे साल में, मंथली जो कैलकुलेशन किया उसका वो टोटल कर दो। सो वो टोटल फॉर एग्जांपल आता है 1 लाख रुपए का, 12 महीनों का टोटल मिला के जो आता है वो आता है 1 लाख रुपए का। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर ये एक्सरसाइज फिर से करो, लेकिन यहां पे सारी फिगर जो आपने मंथली ली थी उसकी जगह पे आप यहां पे ईयरली फिगर लो। मतलब पूरे साल में आपने कितना परचेस किया उसका T निकालो पूरे साल का, फिर पूरे साल का T1 निकालो, पूरे साल का T2 निकालो, पूरे साल का T3 निकालो। हमने जो अब तक एक्सरसाइज की थी वो की थी मंथली वाली, अब ये करनी है ईयरली वाली, सिर्फ पीरियड चेंज हो रहा है। सो पूरा कैलकुलेशन आपका C1 पूरे साल का, उसमें से आपने T4 माइनस किया तो C2 पूरे साल का, वो प्रोपोर्शनेट किया और D1 फाइंड किया। तो अब यहाँ पे D1 हम फाइंड करेंगे पूरे साल का, तो यहाँ पे E और F जो आप लेंगे वो भी लेंगे क्या पूरे साल का। टोटल एग्जाम सप्लाई इन द होल ईयर डिवाइड बाय टोटल सप्लाई फॉर द होल ईयर इन अ रिस्पेक्टिव स्टेट बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। सो अगर एक चीज समझ लो, अगर डाउट आता है तो मैं अभी से एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आपका स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन है तो आपको 2 बार ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सेपरेट कैलकुलेशन फॉर बोथ द सेपरेट रजिस्ट्रेशन यू नीड टू डू हियर। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये पूरा कैलकुलेशन D1 का, पूरा कैलकुलेशन D1 का और D2 का हम पूरे साल का करेंगे बाय टेकिंग ऑल द अमाउंट फॉर द ईयर। अब हमने जो टोटल किया था 1 लाख रुपए का, जो हमने जो टोटल कैलकुलेट किया था ना, 12 महीने का टोटल किया था, वो 1 लाख रुपए का क्रेडिट रिवर्सल आता था। मैं सिर्फ CGST की अगर बात करूं तो 1 लाख रुपए के सामने ये 1 लाख रुपए पूरे साल की अमाउंट नहीं थी, वो भाई समेशन था हर एक महीने का। तो समेशन ऑफ ऑल द मंथ इज नॉट इक्वल टू द अमाउंट कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्रोपोर्शन फॉर द होल ईयर। तो अब आप पूरे साल का कैलकुलेशन करो तो पूरे साल का प्रोपोर्शनेट रिवर्सल कितना आता है वो देखो कि आपको कितना रिवर्स करना चाहिए था। अगर हम पूरा डेटा लेते 1 साल का तो आपको कितना रिवर्स करना चाहिए था। सो 2 पॉसिबिलिटी है वहां पे, 2 पॉसिबिलिटी है वहां पे। पहली पॉसिबिलिटी है कि हमने अगर पूरे साल के डेटा लिए, पूरे साल के अगर हमने डेटा लिए तो रिवर्सल करना पड़ता है 1.5 लाख रुपए का, रिवर्सल करना पड़ता है 1.5 लाख रुपए का। हमने मंथली का जो टोटल किया, हर मंथ जो हमने रिवर्स किया, हमने जो हर मंथ रिवर्स किया उसका जो टोटल किया वो आता है 1 लाख रुपए का। जबकि अगर मैंने पूरे ईयरली वाले डेटा लिए तो रिवर्सल करना पड़ता है 1.5 लाख रुपए का। ऑब्वियसली व्हाट इज मोर रिलायबल फिगर? द मोर रिलायबल फिगर इज ईयरली फिगर। सो मतलब क्या कि ईयरली वाली फिगर जो रिवर्सल की आती है वो ज्यादा आती है बाय 50,000 रुपीज, वो ज्यादा आती है बाय 50,000 रुपीज। तो आपको ये 50,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, आपको ये 50,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। वो कब तक करना पड़ेगा? ये आपको 50,000 का पेमेंट करना पड़ेगा बाय एंड ऑफ द सितंबर रिटर्न। तो आप सितंबर का रिटर्न कब फाइल करते हो? 20 अक्टूबर को। सो 20 अक्टूबर तक
20 अक्टूबर कौन सा, ऑब्वियसली ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। सो अगर मैं 1920 की बात करूं तो फॉर 1920 आप अप्रैल खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपके पास टाइम है कब तक, आपके पास टाइम है सितंबर का रिटर्न फाइल करने तक, मतलब 20 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है। ये पूरे पीरियड में आप पूरा कैलकुलेशन ईयर की फिगर पे फिर से कर लो और देख लो कि आपने जो मंथली रिवर्सल किया उसके टोटल के सामने ईयरली वाली फिगर जो आती है, मंथली का समेशन वर्सेस ईयरली प्रोपोर्शनेट अमाउंट। अगर ईयरली वाली अमाउंट ज्यादा आई, मतलब एक आपका टोटल आता था 1 लाख रुपए का और ईयरली प्रोपोर्शन आता है आपका 1.5 लाख का, तो आपको अभी भी 50,000 पे करने हैं। तो ये 50,000 आपको पे कर देने कब तक, आपको ये 50,000 पे कर देने हैं बाय नॉट लेटर देन मंथ ऑफ द सितंबर। मंथ ऑफ द सितंबर का रिटर्न आपको फाइल करोगे 20 अक्टूबर तक, तो आपको 20 अक्टूबर तक करना पड़ेगा ये 50,000 का पेमेंट। और ये 50,000 का जो पेमेंट है ना, वो आएगा अलोंग विथ एन इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होगा आपका, 1 अप्रैल से। कौन सा 1 अप्रैल, 1 अप्रैल ऑफ 2020 से। अगर 1920 का रिवर्सल आपको करना है बाय 20th ऑफ अक्टूबर, तो आपका अगर ये ईयरली वाली फिगर आती है 1.5 लाख रुपए की, मंथली समेशन था 1 लाख का, तो आपको जो एक्सेस 50,000 का पेमेंट करना पड़ा, उसकी लास्ट डेट आती है आपकी 20th ऑफ अक्टूबर, और 20th अक्टूबर तक आपको ये 50,000 का पेमेंट करना है। नॉट जस्ट 50,000 यू नीड टू पे, लेकिन आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। यू आर लायबल टू एन इंटरेस्ट पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द सब्सिडिंग फाइनेंशियल ईयर। सो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2020 से लेके द डेट ऑफ पेमेंट तक आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, अगर आपका ईयरली वाला फिगर इज मोर देन टोटल ऑफ ऑल द मंथ। ठीक है, सो ईयरली फिगर्स आर ट्रीटेड एज द फाइनल फिगर। ये जो होता है मंथली जो रिवर्सल, दैट इज अ प्रोविजनल रिवर्सल, आई विल से द फाइनल रिवर्सल, इसलिए बोल रहे हैं ना यहाँ पे फाइनली फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो करते हैं वो क्या करते हैं, हम एट द एंड ऑफ द ईयर जो करते हैं वो फाइनल वाला है, जो मंथली किया वो प्रोविजनल वाला है। तो वापिस से आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, तो सर ये मंथली रिवर्सल हम करें ही क्यों, सीधा फाइनल रिवर्सल ही कर देना एट द एंड ऑफ द ईयर। दैट इज नॉट अलाउड। अगर आप मंथली रिवर्सल नहीं करते हो तो आपको वो केस में भी हर एक महीने का रिवर्सल की अमाउंट पे हर एक महीने का इंटरेस्ट आ सकता है अप टू द डेट ऑफ फाइनल रिवर्सल। तो वो केस में आपका इंटरेस्ट रिस्पेक्टिव मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। सो प्रोविजनल रिवर्सल एट द एंड ऑफ एवरी मंथ इज नॉट ऑप्शनल, दैट इज अ कंपल्सरी। आपको कंपल्सरी हर एक महीने के एंड पे रिवर्सल का कैलकुलेशन करना है एट द एंड ऑफ द ईयर। वो सारे महीने का समेशन करना है, उसको आपको कंपेयर करना है ईयरली फिगर्स के साथ। तो ईयरली प्रोपोर्शनेट एक्सरसाइज वापस से करनी है, वही एक्सरसाइज लेकिन बाय टेकिंग ऑल द फिगर्स फॉर द ईयर, बाय टेकिंग ऑल द फिगर्स फॉर द ईयर। अगर एक्सेस फाइनल रिवर्सल वाली अमाउंट आती है तो उसको आपको रिवर्स करना है 20 अक्टूबर तक विथ इंटरेस्ट। ये एक्सेस अमाउंट का इंटरेस्ट स्टार्ट होगा आपका 1 अप्रैल ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर से। सो अगर 1920 है तो इंटरेस्ट स्टार्ट होगा आपका 1 अप्रैल 2020 से। लेकिन अगर आपकी फाइनल फिगर कम आती है, सो फॉर एग्जांपल जैसे मेरा मंथली का टोटल हमने रखा था 1 लाख रुपए का और फाइनल फिगर ईयर वाली आती है आपकी 70,000, तो आपने एक्सेस रिवर्स करके रखे हुए प्रोविजनल 30,000 से, तो ये 30,000 का आप क्रेडिट ले सकते हो ऑब्वियसली। तो यहां पर रिफंड नहीं मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट कितना, कब तक लेना है, वो भी वापस से सितंबर तक, वो भी आपको एक्सेस अमाउंट का आपको यू कैन क्लेम द क्रेडिट बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन हिज रिटर्न for the month but not later than for the month of September following the end of the financial year. So this is something which you all should keep in your mind. इसका अगर ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, ये क्या था, ये एक ही सेशन में मुझे खत्म करना था, लेकिन due to some technical glitches the lecture got stopped in between, so then again I need to do this reshoot of the remaining part of this particular section. हाँ, ये I prefer कि ये lecture आप at least 2 बार सुनो, उसके बाद इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो, और मैं वापस से 42 में ये धीरे धीरे ना पूरा घुमा देता हूं तो आपको समझ में आए कि क्या क्या चीज मैंने कैंसिल की है। जहां जहां रेड में स्ट्राइक आउट किया है वो सारा मैंने कैंसिल कर दिया है। सो यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन कैंसिल हो गया है, उसके बाद ये प्रोवाइजो 9.12 पे कैंसिल हुआ है, 9.13 का ऊपर वाला पार्ट जो बोल्ड वाला था वो कैंसिल हुआ है, उसके बाद 9.14 पे सबसेक्शन सब रूल 3 तो पूरा ही कैंसिल है। सब रूल 3 आपका पूरा ही कैंसिल है और यहीं आपका रूल खत्म होता है। और नीचे बहुत सारे मैंने ब्लैंक पेजेस भी यहाँ पे रखे हैं, तो आप
इस पे ये आपका समरी जो बनाना है आप बना देना। मैं ये जो एक्सेल में जो हमारा कैलकुलेशन था वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा along with this summary, so that would be helpful to you people. Fine. 2 बार सुनना, अगेन आई प्रिफर 2 बार सुनना, अगर कोई डाउट आता है तो पूछ लेना। 2 टाइप के रिवर्सल होते हैं, ये पार्ट ए और नीचे आया था पार्ट बी। टोटल रिवर्सल इज योर D1 एंड D2। सो ध्यान से 2-3 बार ये एग्जाम्पल देखोगे, सुनोगे 2 बार मेरा लेक्चर तो समझ में आएगा, तभी समझ में आएगा। ये एक बार में आप समझ रहे हो कि समझ में आ जाएगा आपका, ऐसा मान के चल रहे हो तो देन इट इज योर मिथ। हाँ फाइन, देन टेक केयर, आई एम स्टॉपिंग इट फॉर टाइम बीइंग। और 2 बार सुनने के बाद अगर कोई डाउट आता है देन यू कैन कॉल मी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डाउट। सो ये 2 बार सुनने के बाद, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने के बाद आपको बुक में से क्वेश्चन देखने हैं, मॉड्यूल है तो मॉड्यूल में से, या फिर जो मैंने बुक दी है उसमें से क्वेश्चन देखने हैं, रेफरेंस बुक जो मैंने दी है उसमें से क्वेश्चन देखने हैं। उसके बाद अगर डाउट रह जाता है देन यू कैन कॉल मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। Sorry for this inconvenience. The lecture has been split into 2 parts. Thank you very much. Take care of yourself and your family members and focus on reading. Thanks. Bye.